Okay, very good afternoon children. Today again we'll see sums like the previous lecture, but we'll focus on where the letters also will be repeating. Means all the objects will not be distinct over here. Some objects will be repeating and some will be distinct. So to understand, I've taken a very small and a simple example. Suppose I want to make spellings with the letters of the word ma, M-A-A. So if you see from the last lecture, I can make 3-letter words spelling. So how many spellings I can make? Actually 3 factorial, that is 6. 3 people can arrange on 3 places in 3 factorial ways, that is 6. So let us try to find all the combination spellings we can form. I can first form ma itself, then A-M-A, A-A-M. These 3 spellings. Again, if I shuffle both A's, again I'll get spelling as ma only. Since I have written 6, so I should get 6. But if you observe carefully, I am getting only 3 unique spellings. Each spelling is repeating twice. I have taken a very small example. For elaboration, you can go for 4 letters also. Okay? Just to understand, I have taken a small example. So in short, unique, I can make only 3 spellings. कितने spellings बना सकता हूँ? 3. But what answer I am getting? 6. Means some extra counting is also done by me in this. When I talk about repeating letters, so when I say about repeating letters, broadly I can say that this answer should be number of letters का factorial divide by m. कितनी बार repeat हो रहा है? एक भी बार नहीं. So m letter is coming only one time. So divide by 1 factorial. Then letter A. Letter A कितनी बार आ रहा है? 2 factorial, 2 times. So 2 factorial. If I solve this, I will get the answer as 3, which is my required answer. ठीक है? आप 3, 4, 5 के साथ 3, 4 तक करके देखो. This will be the generalized formula you will get. This will be the generalized formula you will get. That is, number of letters को count करना है. That factorial divide by every letter का counting factorial. Every letter का counting factorial and so on. Okay? Clear? I'll take one more example to make you understand. Suppose it's my name Deepak. How many words I can make? So how many I'll say? I'll first count all the letters. So 1, 2, 3, 6 letters. So I'll write 6 factorial. Since letters are repeating, I will divide by D is coming how many times? 1 time. No need to write. E कितनी बार आ रहा है? 2 times. P 1 time. A 1 time. K 1 time. So these many spellings I can form. 6 factorial is 720 upon 2, that is 360. How many spellings you can make? 360. Now it is impossible to sit and write all those 360 cases. So try to understand the concept. Total number of letters का factorial divide by every letter का counting factorial. Understood? So whenever the digits are or letters are repeating, we'll think about this case. Okay? So let us start with the exercise from our textbook 3.4. Okay? Question number 1. First one. It is said that find the number of permutations of letter in each of the following words Divya. So if I talk about Divya, here nothing is repeating, correct? कोई भी letter repeat नहीं हो रहा है. So we know simple answer will be 5 factorial. कितना आएगा answer? 5 factorial. How much? 5 factorial. Okay. Now next is Shantaram. Second spelling is Shantaram. So let us count the number of letters in this first. कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 factorial upon S कितनी बार आ रहा है? 1. HB 1. A कितनी बार आ रहा है? Can you see 3 times? So 3 times.
और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं. दिस विल बी माय आंसर. 9 factorial by 3 factorial. And third is represent. क्या आएगा? 3, 6, 9. So again 9 factorial divide by e कितनी बार आएगा? Only write the repeating letters. E कितनी बार आ रहा है? 3 times. So 3 factorial. R is coming 2 times. So 2 factorial. ठीक है? E आ रहा है 3 times. R आ रहा है 2 times. Understood? Next is combine. कितना है? 7 factorial. Is anything repeating? नहीं. Nothing is repeating. So answer is 7 factorial. ठीक है? Next है बाल भारती. Our textbook का owner, I can say, if I am not wrong, बाल भारती. कितना है? 3, 6, 9, 10. तो ये हो गया 10 factorial. कुछ कॉमन है? Yes. B कितनी बार है? 2 times. So 2 factorial. A is coming 1, 2, 3 times. 3 factorial. L नहीं आ रहा है, H नहीं आ रहा है, R नहीं आ रहा है, B. This is answer. Understood? Yes. धीरे धीरे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं क्वेश्चंस की. Now question number 2 is favorite of many examiners. आप BCA, BCS, इंजीनियरिंग कहीं भी जाओगे, ये सब हर बार आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली मिलेगा. You have 2 identical books on English. 2 identical books on English. 3 identical books on Hindi. 3 identical books on Hindi. And 4 identical books on mathematics. ठीक है? Find the number of distinct ways of arranging them on shelf. इन्हें अरेंज करना है, कोई कंडीशन नहीं दी है. तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In all, they can be arranged in 9 factorial ways. Now, since the books are same, ऐसे अरेंज करो या ऐसे अरेंज करो, काउंटिंग एक ही होना चाहिए क्योंकि सेम है. इंग्लिश इंग्लिश, उल्टा भी इंग्लिश इंग्लिश किया तो भी आंसर वही आना है. Therefore, I have to divide by इसका 2 factorial, इसका 3 factorial, इसका 4 factorial. तो ही डिस्टिंक्ट वेज आएंगे. अगर ये डिफरेंट इंग्लिश बुक्स होती तो नीचे कुछ नहीं आता, आंसर क्या आता? सिर्फ 9 factorial. Are you getting it? Yes. धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे हम सम्स की. Now question number 3. A coin is tossed 8 times. In how many ways can we obtain 4 heads and 4 tails? 4 heads चाहिए, 4 tails चाहिए. इजी है. अगेन सेम. टोटल कितने बार टॉस किया है? 8. So 8 factorial. H कितनी बार है? 4 बार. तो 4 factorial. T कितनी बार है? 4 बार. तो 4 factorial. आया समझ में? Yes. सेकेंड है at least 6 heads. Now it is very nice. कम से कम 6 heads चाहिए. So if I say at least मतलब 6 heads भी चलेगा, 7 heads भी चलेगा, 8 heads भी चलेगा, उससे ज्यादा नहीं क्योंकि 80 coins है हमारे पास. So it can be 6 heads है तो 2 tails आएंगे और 7 heads है और 1 tail आएगा, या सारे heads आएंगे. Am I right? Either all are heads. These 3 cases I will get. Again heads is repeating, somewhere tails is repeating. By default सबका न्यूमरेटर आएगा 8 factorial क्योंकि 8 coins है. हेड कितनी बार रिपीट हो रहा है? इधर 6 times. So 6 factorial. इधर टेल्स के लिए 2 factorial. यहां पर हेड कितनी बार आ रहा है? 7 factorial, 1 factorial. और यहां पर 8 factorial. 8 के 8 हेड आएगा, ऐसा एक ही बार होगा. और गेटिंग इट? शफल भी किया, 8 के 8 कॉइन का हेड आंसर एक ही बार आएगा. हर ताले की एक ताले की एक ही चाबी होती है. रिमेंबर? सेम वैसा 8 कॉइन्स हेड आएंगे, ऐसा एक ही केस होगा.
See, what I have written is absolutely correct. Understood? Yes? Clear? Okay. Now question number 4. A bag has 5 red balls, 4 blue balls and 4 green balls. If all are drawn one by one and their colors are recorded, how many different arrangements can be formed? पहला ब्लू निकालो या दूसरा ब्लू निकालो, कंडीशन एक ही आनी है. टोटल कितना हुआ? 5 + 4 9 + 4 13. तो आंसर आएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. Clear everybody? Any doubts still here? Sure? Okay. Now next question is find the number of ways of arranging letters of the word mathematical. किसके letters को arrange करना है? Mathematical spelling के letters को arrange करना है. किसके? Mathematical spelling के letters को. So mathematical क्वेश्चन नंबर 5. सो कंडीशंस हटा दी, कुछ भी कंडीशन नहीं दी है. हाउ मेनी वर्ड्स आई कैन मेक? सो नंबर ऑफ वेज कैसे लिखोगे? सभी को काउंट करोगे पहले एज यूजुअल. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो 12 फैक्टोरियल. अब m कितनी बार आ रहा है? 2 बार. सो 2 फैक्टोरियल. a कितनी बार आ रहा है? 3 times. So 3 factorial. T कितनी बार आ रहा है? 2 times. 2 factorial. H is not repeating. Nothing is repeating. ठीक है. अब आया कहानी में ट्विस्ट. How many of these arrangements, मतलब इन arrangements में से, total arrangements है without any condition, how many of these arrangements have vowels together? How many of these arrangements have vowels together? ठीक है. थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, रिपीटिंग वाला सिचुएशन है तो सारे vowels एक साथ इकट्ठा करते हैं. सेम पिछला सम हो जाएगा पिछले वीडियोस की तरह. ए वॉवल है, ई वॉवल है, आई वॉवल है. ए ई आई साइड में निकाल दिया. बचा क्या? एम टी एच एम, सॉरी और एक ए है, एम टी एच एम टी सी एल. इन्हें अलग कर दिया. ठीक है. जस्ट गिव 1 minute टाइम, थिंक ओवर इट. अगर रिपीटेशन छोड़ दिया तो हम क्या करते हैं? इससे एक ग्रुप बनाते हैं. दिस इज 1 ग्रुप. इस ग्रुप को इसमें एडजस्ट करेंगे. एम आई राइट? सो थिंक ओवर इट. तो कितना हो जाएगा? दिस 1 ग्रुप 2 3 4 5 6 7 8. इन ऑल कितने लेटर्स आए? 8 लेटर्स. सो 8 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड एज हाउ मेनी वेज? 8 लेटर्स. मैंने क्या किया? आई एम अज्यूमिंग vowels as 1 group. So 2 3 4 5 6 7 8. So 8 people can arrange in how many ways? 8 factorial ways. Correct? 8 people can arrange in 8 factorial ways. So पहले आएगा number of ways is equal to 8 factorial. Into क्या करते थे हम लोग? ग्रुप का फैक्टोरियल. So 1 2 3 4 5. ग्रुप का फैक्टोरियल कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल. प्रीवियस हिस्ट्री रिमेन्स सेम, खाली चेंज क्या होता है? आई हैव टू डिवाइड बाय द कॉमन लेटर्स का फैक्टोरियल. तो मुझे पता है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. सिर्फ ये वाला पार्ट क्या है? एक्स्ट्रा. ये वाला पार्ट क्या है? एक्स्ट्रा. आया समझ में? यस, क्लियर. अभी क्वेश्चन आया नो 2 vowels आर टुगेदर. No 2 vowels together ऐसा आया. तो यहाँ पर रिपीटेशन वाले केसेस है तो हम वो क्रॉस वाला मेथड यूज नहीं कर सकते कि यहाँ बीच में फिल कर देंगे क्योंकि लेटर्स रिपीट हो रहे हैं ना. तो हम क्या करेंगे? ऑल केसेस, दैट इज ऑल केसेस माइनस ऑल टुगेदर वाले.
अगेन हैव टू थिंक, ये सारे एक साथ आ रहे हैं, मुझे 2 वॉवल साथ में नहीं चाहिए. थिंक ओवर दिस एंड टेल मी द आंसर. ओके, नो 2 वॉवल्स टुगेदर का आंसर आप लोग मुझे दोगे. इफ आई आस्क द क्वेश्चन नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर, आप गैप मेथड से भी कर सकते हो अगर नो 2 वॉवल्स बोला है तो. ठीक है, यू कैन गो बाय गैप मेथड आल्सो. ट्राई इट, यू गेट द आंसर. ठीक है, now next 6th question will be later on, question number 6 and 10, little bit lengthy hai. So let us go for 7th one now. How many different words are formed if the letter R is used thrice? R is used thrice and S and T twice each. S and T twice each. Very simple. क्या आएगा? नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? काउंट कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. करेक्ट. 8. Find the number of arrangement of letters in the word Mumbai. Mumbai. So that B is always next to A. B हमेशा A के बाद आना चाहिए. जब भी आएगा A भी आना चाहिए. B A नहीं चलेगा. हमेशा हर कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए? A B. क्या होना चाहिए? A B. ठीक है, तो सी इसको एक ग्रुप बना के चलेंगे हम. साथ में चाहिए तो क्या करेंगे? ग्रुप. तो बचा क्या? M U M I. कितने लेटर्स हो गए यहाँ पर? ये सो नंबर ऑफ वेज. नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 1 2 3 4 5. 5 फैक्टोरियल. ग्रुप का 2 फैक्टोरियल नहीं लेंगे क्योंकि दे हैव सेड B इज ऑलवेज नेक्स्ट टू A. मींस BA नहीं हो सकता. सिर्फ क्या होगा? AB. सो आई विल नॉट डू दैट 2 फैक्टोरियल. डिवाइड बाय n कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार. सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. कॉमन लेटर्स का फैक्टोरियल से डिवाइड करना नहीं भूलना है. ओके. 9th one. Find the number of arrangement of letters in the word constitution. Constitution. ठीक है. That begin and end with N. Start N से होना चाहिए, end भी N से होना चाहिए. चलो ये दो तो फिक्स हो गए. मतलब ये दोनों बाय डिफॉल्ट चले गए. मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं ना. चाहे n ऐसा लिखा हो चाहे उल्टा n लिखा हो, स्पेलिंग विल बी वन ओनली. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These 10 people can arrange in 10 places anyhow. Therefore, number of ways आएगा 10 people can arrange in 10 factorial ways. Divide by. अब चेक करो. C एक बार आ रहा है. O 2 times, T 3 times, S एक ही बार आ रहा है, I 2 times. You should not forget to do this. Okay? O 2 times, T 3 times, I 2 times. इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि N are already fixed. One way, one way. Okay? Getting it? Clear? Any doubts? 10th वाला भी बाद में करेंगे. Let us move on to 11. How many distinct 5-digit numbers? Distinct 5-digit numbers बनाने हैं. Using the digits 3 2 3 2 4 5. 3 2 3 2 4 5. 5-digit words बनाने हैं from this 6 digits. और distinct बोला है. Distinct का मतलब क्या है? हर जगह अलग अलग लेटर आना चाहिए. करेक्ट. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5-digit numbers? मींस एवरी 2 5-digit numbers must be different. तो कैसा करोगे? Think over it and tell me. Okay, I'll give you time. Is it clear? Just give a try. If not, I'll explain you. Okay. Okay. I was talking about how many 5-digit distinct numbers can form from 3 2 3 2 4 5. यहाँ पर प्रॉब्लम ये है
आई हैव 6 नंबर्स, 6 डिजिट्स, और नंबर मुझे 5 डिजिट बनाना है। सबसे पहले मुझे 5 डिजिट के कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। सो व्हाट कैन बी द कॉम्बिनेशन? 2 2 3 4 5। मैं इन 5 नंबर्स को लेके 5 डिजिट नंबर्स बना सकता हूं। Am I right? I can also take 3 3 2 4 5. Correct? Then I can also take 2 2 3 4 2 2 3 3 4 and 2 2 3 3 5. इस 5 कॉम्बिनेशन, इन 4 कॉम्बिनेशन से मैं डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स बना सकता हूं। टेकन रिपीटेशन 1 टाइम, 2 का, 3 का, दोनों का कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो नाउ इन 5 डिजिट से 5 प्लेसेस फिल करना है। सो ये क्या आएगा? एज यूजुअल 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, सो 2 फैक्टोरियल। करेक्ट? ये भी सेम आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका न्यूमरेटर भी आएगा 5 फैक्टोरियल। यहां पर 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। करेक्ट? सेम इसका आंसर भी वही आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 120 अपॉन 2 60 60 30 30। So in all I can make 180 numbers। कितना बना सकता हूं मैं? 180 numbers I can make। ठीक है, now question number 12। Find the number of distinct numbers formed using the digits 3 4 5 6 7 8 9 so that odd positions are occupied by odd digits। इससे पहले बताओ मैं कितने डिजिट का नंबर बना सकता हूं? 7 डिजिट का। उसमें भी क्या बोला है? ऑड प्लेसेस पे ऑड डिजिट्स होने चाहिए। तो ये मेरी ऑड प्लेसेस है, इन ऑड प्लेसेस पे क्या होना चाहिए? ऑड डिजिट्स। व्हाट आर द ऑड डिजिट्स? 3 5 7 9। करेक्ट? सो दीज 4 प्लेसेस can be filled by 4 people in how many ways? 4 factorial। कैसे फिल होगा? 4 factorial। करेक्ट? 1 2 3 3 प्लेसेस है और 3 नंबर्स मेरे पास 4 6 8। so they can be filled in 3 factorial ways। करेक्ट? ये फिल्ड होंगे इवन नंबर से, ये फिल्ड होंगे ऑड नंबर से। सिंपल 4 factorial into 3 factorial। अंडरस्टूड? Yes. Okay. Now 13th one is very nice। How many 6 digit numbers? कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6। Can be formed using 6 5 9 9 4 2। How many of them are divisible by 4? 4 को साइड में रखते हैं, पहले कितने बना सकते हैं वो देखें। So numbers that can be formed is how much? ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 6 फैक्टोरियल। ओनली 9 इज रिपीटिंग ट्वाइस, सो 2 फैक्टोरियल। तो कितना आएगा? 720 अपॉन 2 दैट इज 360। इन ऑल हाउ मेनी नंबर्स आई कैन मेक? 360 नंबर्स ऑफ 6 डिजिट आई कैन मेक। अब मुझे उसमें से चाहिए एवरी नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं। तो इस केस में ऐसा कब होगा कि लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आएंगे? जब वो लास्ट का 4 डिजिट, सॉरी लास्ट के 2 डिजिट्स, अगर लास्ट के 2 डिजिट हो गए मेरे 42 हो गया, 24 हो गया, देन 64 हो गया, देन 92 हो गया, और कुछ आ सकता है 42 24 64 46 नहीं आता है, 65 नहीं आएगा, 59 नहीं, 54 नहीं।
52 आएगा। यस 52 आता है, करेक्ट। सो मैंने क्या कर दिए, कुछ डिजिट्स को फिक्स कर दिया। सो दीज टू प्लेसेस आर फिक्स्ड बाय दीज टू डिजिट्स। इट मींस यहां पर क्या हो सकता है, इन चारों में से कोई भी आएगा। क्या आएगा, इन चारों में से कोई भी, करेक्ट। तो इन चारों में से कोई भी आएगा। 4 people कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 4 फैक्टोरियल। मैं डिवाइड बाय 2 नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है। ये 99 और ये 99 में फर्क होता है, जो लेटर्स में नहीं हो रहा था। आर यू गेटिंग इट? इज इट क्लियर? यस। So आएगा 4 फैक्टोरियल। ऐसा कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो रहा है। हर एक के लिए वैसे ही आएगा ना, हर एक को बार बार लिखने से अच्छा है 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, दैट इज 5 into 24। सो 120 नंबर्स ऐसे होंगे जो उस टेबल में आएंगे। सो इट मींस हियर आल्सो आई कैन नॉट डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इट्स रॉन्ग, क्योंकि 9 यहां पर आए और 9 यहां पर आए, there is a big difference, so this should not be, let me check just a moment. .4 12 sorry 13. No, something is wrong over here. Let's check. 42 आया, 4 का टेबल है, 24 is also 4 का टेबल, 64 भी, 92 also is there, 52 is also there. No, this is correct. It should be 120 ways. Okay, understood? Clear everybody? Okay. Now let's move on to question number 14. I'll read question number 14. Find the number of distinct words formed from the letters in the word Indian. Distinct words formed from the letters of the word Indian. How many of these have the 2 N's together? Indian spelling में से 2 N क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। Indian में से both N should be together. So ले लो together, NNIDIA, ये टुगेदर होना चाहिए। सो एक ग्रुप, 1 2 3 4 5, सो 5 फैक्टोरियल, ग्रुप का 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ओरिजिनल स्पेलिंग के कॉमन लेटर्स, N 2 टाइम्स, I 2 टाइम्स, सो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कट कट, आंसर आएगा 60। कितना आएगा, 60 स्पेलिंग्स कैन बी मेड। अंडरस्टूड? Yes. Okay, 15th one. Find the number of different ways of arranging letter in the word platoon. Platoon. 2 O's are never together. पहला बोला है 2 O's never together. Okay? दोनों साथ में नहीं चाहिए। सेकेंड बोला है कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल, दैट यू विल डू, आई विल जस्ट डू दिस, 2 O's नेवर टुगेदर। तो क्या करेंगे, सिर्फ 2 O's ही बोला है ना, तो 2 तरीके हैं, या तो गैप मेथड यूज करो और एल्स नॉर्मल। हम लेंगे पहले ऑल कंडीशंस, ऑल केसेस। ऑल केसेस में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन O is repeating 2 times, so 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सेकेंड केस लेंगे O's टुगेदर, O's टुगेदर, तो क्या आएगा, ये बन जाएगा एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, ग्रुप का 2 फैक्टोरियल अपॉन O का 2 फैक्टोरियल। मुझे नॉट टुगेदर चाहिए, सो ऑल माइनस ये किया, वॉट एवर आंसर आई गेट दैट विल बी नॉट टुगेदर। ठीक है, इज इट क्लियर? लकीली सिर्फ O रिपीट हो रहा है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, PLATN, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कहीं भी O डालो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इज इट क्लियर? गेटिंग इट? नाउ
I'll end this lecture with question number 10. Okay.